that Chhatrapati was sitting, that was Chhatrapati Shahu, he was sitting, and he asked two things. He said that attack on the route because Mughals are weak. Just 20 years old when he succeeded Balaji Vishwanath. वो जो पिक्चराइजेशन में बिल्कुल एक यंग उसका दिखाया गया, 20 साल का लड़का, वो क्लेम करता है that I'll be the next Peshwa. Maratha Empire now became vacant. There was no one. There was only one person. The eldest surviving member of this Peshwa family was Madhavrao the First. क्या पढ़ा था लास्ट का? जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवारी. फाइन, ओके, फाइन. आज गर्मी कुछ ज़्यादा है बाहर. ओके. So that was mainly about Cornwallis that we talked yesterday. And what was the case? That Cornwallis was mostly responsible for two very major things in Indian history. Number one is, yes, the Civil Services Code, or he is considered as the father of modern civil services. Why? Because the bifurcation of power, especially at the district level, was his major contribution, or major thing, major administrative change that he made. And for the last, more than 2 centuries, the system has remained in our country, and not just in our country, in all those places where the British ruled. So this was the case there. Secondly, he is known for the very important aspect, and that is the permanent settlement. Though this permanent settlement was also the part of the Civil Services Code. This permanent settlement was also the part of the Civil Services Code, and this became one of the major pillar for strengthening and consolidating the hold of British Empire in India. How? Number one, now they don't have to rule the whole population, or they don't have to control the whole population. What they have to control is just the zamindars. They don't have to control all, they just have to control zamindars. And another thing, that they created another divide. They created another divide in the society, let's say the peasants and the zamindars, where the bad guy was the zamindar. He was, but मतलब upfront तो वही था, लेकिन अंग्रेज बुरे नहीं दिख रहे थे. इस पूरे प्रोसेस में अंग्रेज जो है वो बुरे नहीं दिख रहे थे. बट ज़मींदारी was something, because now they are successful in creating a class of Indians which is loyal to them. Understand this. The significance of zamindar, zameen, revenue collection, efficiency, all on one side. But they were successful in creating a class of Indians who were loyal to them and who were the elite class, because this zamindari resulted in landed aristocracy. This zamindari resulted in landed aristocracy. Yes. So अब जिसके पास ज़मीन है, जो अमीर है, जिसके पास ज़मीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मालिकाना हक है, वो किसका लॉयल है? वो ब्रिटिश का लॉयल है. वो उनकी बात सुनेगा. अच्छा, आफ्टर 1793 only this person went. Who? Cornwallis. And Cornwallis was succeeded by John Shore. Cornwallis was succeeded by Sir John Shore. He was for 5 years, 1793 to 1798. (1793 to 1798). Though 5 years were significant enough, but अभी हम इसके बाद वापस थोड़ा सा रिवाइंड में जाएंगे. हम बात करेंगे इस जॉन शोर के बाद हम बात करेंगे अबाउट मैसूर एंड मराठास. सो यहाँ तक आते आते, एज इन जब तक जॉन शोर का टेन्योर आया, तब तक आते आते there was a lot of intervention which was going on with the native princes. So first thing first, he did that
So you can say that the predecessors of John Shore followed an aggressive expansionist policy. मतलब चाहे वो कॉर्नवालिस हो, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स हो, इनका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो दे फॉलोड अ aggressive expansionist policy. But if you see John Shore, so he opted for policy of non-intervention. What he opted? He opted for policy of non-intervention because he believed in increasing the British influence through diplomacy rather than military intervention. What he believed? That if we have to increase the British influence, it should be through diplomacy rather than military intervention, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा burden पड़ रहा था ट्रेजरी के ऊपर, revenues के ऊपर. We have seen that and we will see them again after this. Of course, अच्छा, टेक्निकली जो परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया था, इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ जॉन शोर. परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया का जो चीफ आर्किटेक्ट था वो कौन था? जॉन शोर था. वो तो अब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना, क्योंकि जॉन शोर इस पर बहुत पहले से काम कर रहा था. सो जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट आता है वैसे ही कॉर्नवालिस चला जाता है और जॉन शोर कम्स. सो ही हैड एक्चुअली फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस बिकॉज टू थिंग्स. इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड द वे जॉन शोर हैज़ एडवाइज्ड. जो उसने फर्स्ट फॉर्म जो एडवाइस किया था ये वो फॉर्मेट नहीं था ज़मींदारी सिस्टम का. एंड आई टोल्ड यू येस्टरडे एज वेल दैट ग्रेजुअली ज़मींदारी सिस्टम वॉज फ्लॉड इन इटसेल्फ. जैसे कहने को ज़मींदारी जो है वो, मान लो उसने टैक्स नहीं दिया तो क्या होगा? उसकी ज़मींदारी नीलाम होगी. लेकिन अगर ज़्यादातर ज़मींदारों ने नहीं दिया तो, मान लो 100, 200, 500 ज़मींदार हैं, 500 में से 250 ने नहीं दिया, तो उस 250 की ज़मींदारी को ख़रीदेगा कौन? प्रोसेस क्या था? आपने ज़मींदारी का अपना रेवेन्यू नहीं दिया, देन योर ज़मींदारी विल बी ऑक्शन, सिंपल. बट who will auction? In auction, who will purchase? Who is having purchasing power? If half of the population, the rich, let's say half of the rich population is already getting their property auctioned, what will happen to the rest? तो वो economic instability आई. Also, because the revenue was fixed, the immediate जो है impact दिखने लगा था, because वो जो price fluctuation और fixed revenue and price fluctuation, that was creating a problem. So John Shore का tenure is known for economic instability basically that arose because of flawed implementation of the zamindari system or the permanent settlement. Fine. So this was John Shore. अच्छा, कोई मेजर वॉर नहीं हुआ किसी, क्योंकि he was not following the policy of intervention, he was following the policy of किसी तरीके का कोई military intervention नहीं हुआ. तो his tenure was more or less peaceful overall. Fine. Now before we move on further, because next Governor General will be Wellesley, लेकिन वेलेस्ले को समझने से पहले हमें दो important powers को समझना होगा who were operating in this period, जिनको हमने थोड़ा सा skip किया हुआ है, and that is Marathas and Mysore. We'll start with Marathas. सबप्राइम क्राइसिस सुना है? सबप्राइम क्राइसिस 2007 यूएसए. तो एक टाइम आया जब यूएसए में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा और वहाँ का रियल स्टेट, पूरे अमेरिका का रियल स्टेट जो है वो बूम करने लगा. अब रियल स्टेट बूम कब करेगा? जब लोग घर खरीदेंगे. अच्छा, लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो घर खरीदें, तो बैंक्स ने क्या किया कि
जो होम लोन थे उनको प्रोसेस आसान कर दिया, एंड दे क्रिएटेड सच एन ईजी पेमेंट प्लान दैट द EMI was lesser than the prevailing level of rent. मतलब घर कितने सस्ते कर दिए कि अगर आप, एक तो प्रोसेस इजी कर दिया था, और जो EMI होगी घर की वो उससे भी कम हो गई, जो कि लोग उस दौर में रेंट दे रहे थे। तो लोग क्या करेंगे? सब घर खरीद लेंगे। सबने घर खरीदा भी, लेकिन फिर आया अमेरिका में रिसेशन, लोगों की जॉब्स जाने लगी। अब जॉब्स जाने लगी तो EMI नहीं दे पाए, EMI नहीं दे पाए। अच्छा, जब EMI नहीं दे पाए तो क्या हुआ? ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा सेक्शन था, वही सेक्शन था जो जॉब कर रहा था, रेंट पे रह रहा था, है ना, और वो नहीं दे पाया। अच्छा, तो बैंक का प्रोसेस क्या होता है? अगर आप बैंक का वो नहीं दोगे तो वो कॉन्फिस्केट करके उसको नीलाम कर देगा। बैंक ने प्रोसेस फॉलो किया अमेरिका में, दैट दे स्टार्टेड टेकिंग द प्रॉपर्टीज and after that they started auctioning. Now tell me, who will purchase that? No one. क्योंकि अगर लोगों के पास इतनी परचेसिंग कैपेसिटी होती तो वो अपनी EMIs पे कर रहे होते, वो लोगों ने छोड़ दिए, बोले ले जाओ, हमारे टाइप नहीं है, हमारे यहाँ जैसा जो घर से लगा हुआ वैसा नहीं है, तो ठीक है ले जाऊँ, वापस रेंट पे चले जाएंगे। And the bank was flooded with unpaid EMIs and those properties, और gradually बैंक कोलैप्स कर गए। तो वो जो वहाँ से एक रिसेशन ट्रिगर हुआ था जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में दिखा था, उसके बाद फेडरल बैंक ने 2008 में या 9 में एक टीम भेजी थी टू स्टडी द लेंडिंग पॉलिसीज एंड द लेंडिंग नॉर्म्स ऑफ RBI, बिकॉज हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोसेस नहीं है। वी हैव अ प्रिटी स्ट्रिक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट, हाउस क्रेडिट। सो दिस हैपेंड। सो वो जब इतने घर हो गए कि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं बचा, इतने, क्योंकि अगर वो कैपेसिटी नहीं रही ना लोगों की। सेम थिंग हियर, उनके साथ भी हुआ। जब 2-3 साल ज़मींदारों ने देना बंद कर दिया तो कोई रहा ही नहीं कि जो उसको ख़रीद सकता, तो वो उन्हीं ज़मींदारों के पास रहा जिनके पास वो था, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन व्हाट द बैंक्स, देयर वाज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फॉर EIC। अच्छा, मराठा का थोड़ा सा मैं मिडिवल की तरफ से शुरू करूंगा, जहाँ से मराठा की शुरुआत होती है, ठीक है। सो डोंट टेक इट कि सर ये मॉडर्न है कि मिडिवल है कि क्या है। इट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट मराठा एम्पायर एज। अच्छा, मराठा एम्पायर की शुरुआत होती है इस बार क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्यों? अरे बेटा अभी न्यूज़ नहीं देख रहे हो? महाराष्ट्र में इतना बवाल चल रहा है। वो मोदी जी 9 महीने पहले जिस शिवाजी की मूर्ति का इनॉग्रेशन करके आए तो गिर गई, वो पूरा कोलैप्स कर गई। तो उनके लिए न्यूज़ है, बट हमारे लिए क्वेश्चन है वही। सो मराठास की शुरुआत होती है रायगढ़ से। एक छोटा सा किंगडम था ऑन द अदर साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, और इसकी शुरुआत की शिवाजी भोसले ने। इसकी शुरुआत की शिवाजी भोसले ने। अच्छा, इस नेम वो शिवा भोसले, शिवाजी इज द G is added later on. अच्छा, so initially what he was doing, that he was in constant fight with Sultan of Bijapur. आप जब बहामनी किंगडम पढ़ेंगे, विजयनगर एंड बहामनी किंगडम विल ब्रेक इनटू 5 स्मॉलर किंगडम्स। वन ऑफ देम वाज बीजापुर। सो दिस पर्सन विल हैव अ कांस्टेंट बैटल विथ बीजापुर। फाइन। सो कुछ लिया, कुछ जीता, कुछ हारा करके he was having control over a significant region at that point of time. And in 1674 he was being crowned as छत्रपति। छत्रपति का मतलब क्या होता है? No, it means sovereign.
Chhatrapati means sovereign, independent, and he was the one who gave the idea of, yes, and that's Hind Swaraj, not Hindu Swaraj. The idea that he gave, the idea that he propagated here was the idea of Hind Swaraj, not the popularized Hindu Swaraj. Nahi, it was Hind Swaraj that he used. That is the self-rule. Acha. So in 1674, he crowned himself as Chhatrapati, but before that only his, administration and those things. So he was succeeded by his son Shambhaji, he was captured by Aurangzeb and executed. मैं पता नहीं वो नई मूवी में क्या दिखाने वाले हैं, अभी आ रही है विकी कौशल की एक, उसमें ही शंभाजी, हाँ, एंड जो औरंगजेब को आइडेंटिफाई कर देगा कि वो कौन है, औरंगजेब का उसमें दिखाया है। औरंगजेब ने वहाँ वो कहता है कि शिवा तो मर गया बट अपनी सोच छोड़ गया। सो दैट इज़ व्हाट। अच्छा, होता क्या है, औरंगजेब वॉज ऑब्सेस्ड विद डेक्कन। औरंगजेब वॉज ऑब्सेस्ड विद डेक्कन सिंस हिज टाइम ही वॉज गवर्नर ऑफ डेक्कन, जो कि शाहजहाँ के दौर में था। बट देयर वॉज अ गुड थिंग विच वॉज कि ये जो किंगडम्स थे, कौन से, ये जो सल्तनत थी छोटी छोटी, बीजापुर, बिरार, बिदर, ये अहमदनगर, गोलकोंडा, this was like a buffer between the Marathas and the Mughals. इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये हुआ कि औरंगजेब ने इन किंगडम्स को एक्वायर कर लिया। जब तक ये किंगडम्स थे, सल्तनत ऑफ बीजापुर और ये सारी चीज़ें थी, देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ऑफ मराठाज एंड मुगल्स, क्योंकि बॉर्डर नहीं मिल रही तो झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। शुरू कब हुआ, जब औरंगजेब ने इनको एक्वायर किया। औरंगजेब एक्वायर्ड दीज सल्तनट्स ऑफ बहामनी किंगडम, these kingdoms of Deccan, and now they came, and this was a political blunder, not because Marathas were a good power at that point of time, and because their growth was unchecked in the beginning years, so they have grown very well, at least at the time of this person Shivaji. अच्छा, so यहाँ से अच्छा शिवाजी के बारे में जो आता है, three things that you have to remember, जहाँ से सवाल आएगा। One is the Ashtapradhan, which was a major part of his administration. So who were Ashtapradhan? Something like Navratan, but Navratan were individuals. These were positions. Navratans were individuals, but Ashtapradhan were, and this there were the 8 prominent officials. Ashtapradhan, Asht as in 8 prominent officials who were looking for the overall administration, and they were number 1 the Peshwa. कौन कौन थे वो भी लिख लो। Peshwa was the prime minister. Peshwa was the prime minister. Then Amatya और Majumdar. Amatya or Majumdar, and Amatya was the finance minister. Amatya or Majumdar was the finance minister. लिख लो, मैच में आ जाता है। Then Vakrenavis, Vakrenavis was the home minister. Vakrenavis was the home minister. Then there was called as Dabir or Samant. He was foreign minister. Dabir or Samant was the foreign minister. सचिव कौन होगा? पंचायत वाले मत बोल देना।
पंचायत वाले सचिव जी हैं। हाँ, बट ही वॉज द वन हु कंडक्टेड द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉट द एडमिनिस्ट्रेटर। सचिव जो कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस का इंचार्ज था। देन पंडित राव, कौन होगा? प्रीस्ट, रिलीजियस ऑफिसर, प्रीस्ट और रिलीजियस ऑफिसर। सरे नौबत और सेनापति, ये कौन होगा? मिलिट्री चीफ, administer the army affairs or defense minister, let's say defense minister. And the last one was न्यायाधीश, the chief justice, the chief justice. So अष्टप्रधान, you can get a question मैच करने के लिए आ सकता है, या which of these were the part of अष्टप्रधान or which of these were not the part of अष्टप्रधान, something like this. बेटा वो छत्रपति थे, वो इन सबसे ऊपर थे। हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, वो जंग लड़ रहे थे, सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जंग वंग लड़ना, एक्सपेंशन करना। सो इट वाज लाइक दैट द छत्रपति इज बिजी इन एक्सपेंशन, ही विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आते हैं इस पे। जनरली इस जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं हेरिडिटरी नहीं थी, ये हेरिडिटरी नहीं होगी 1713 तक। अच्छा, दूसरी चीज़ एक जो आपको सवाल आएगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो आएगा टैक्सेस पे। चौथ और सरदेशमुखी, दो तरीके के टैक्सेस यहाँ पर लगते थे। One was called as Chauth, another was called as Sardeshmukhi. चौथ का मतलब क्या होगा? चौथाई, 1/4। चौथ का मतलब होता था that is 1/4। अच्छा, this was applied on those kingdoms which were alien, मतलब ध्यान से सुनना, जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं थे, उनके ऊपर ये लगाया गया दैट पानी और कॉफी, मान लो कोई किंगडम है, छोटा सा राज्य है, मराठा सेड दैट वी विल नॉट अटैक यू, even if you are the part of the Deccan, you are the part of your, let's say there's a small jagirdari, 100, 200, 300 villages, fine, and they are at the border stage, they are at the buffer zone of the Mughals and the Marathas, or the Deccan or the Marathas. Marathas sent them a message that if you will, what about Peshwas? They were involved, Samarth, in battles, but we'll talk about how position of Peshwa evolved after this. So they said that we will not attack you, we will not invade you if you pay us 1/4 of the tax that you are paying to either the Sultan or the Mughal. Chauth, 1/4 means whatever tax you are paying to them, if you will pay 1/4 of that to us, we will not attack you, we will not raid you, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया से, ठीक है, डर दिखा के पैसा लिया। Yes, it is the kingdom who has to pay that you are, let's say, क्योंकि यही डील होती थी, मनसबदारी हो या इक्तादारी हो, इसी तरीके की डील होती थी कि you will collect the revenue and a part of that will be paid to the मुगल। तो उन्होंने कहा आप मुगल को 100 रुपये देते हो, 25 हमें दो, हम आपको रेड नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन के लिए वही तो मतलब हुआ, और क्या हुआ? नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, दे विल जस्ट दैट वी विल नॉट रेड यू, दैट ऑफ कोर्स मुगल को वो ऑलरेडी दे रहे हैं, तो मुगल उन पे तो अटैक करेंगे नहीं। अटैक कहाँ से था? बस
Fine. Chauth was kind of protection money. Fine. Then there was Sardeshmukhi. Now this was imposed on entire population. Sardeshmukhi was imposed on entire population, जहाँ they have to pay 1/10 of the land standard land revenue imposed, जो भी होगा उसका 1/10 आपको पे करना है. And if you are doing so as a mark of recognition Maratha king as their Sardeshmukh. Sardeshmukh का मतलब होता है village headman. Sorry, the Maratha king. तो अगर आप मराठा ऑनर कर रहे हो, आप मराठा को किंग ऑनर कर रहे हो, देन यू हैव टू पे 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू. सरदेशमुख. सो ये दो जो है मेजर टैक्सेस थे. बट इफ यू टॉक अबाउट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी. अच्छा, इस दौरान एक और चीज़ बिफोर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. Gradually what happened, the Maratha Empire evolved as a confederation. The Marathas, they evolved as a confederation. What is a confederation? Right. Two or more kingdoms Come together. Form a single kingdom. Form a single kingdom. As in like a alliance. It is a kind of alliance where all of them are together, and it is not that someone is paying tax to someone. It is they are just coming together for a common cause. जैसे आपको लैटिन अमेरिका में दिखेगा आज के टाइम पे, दे हैव दिस सेंट्रल अमेरिकन कॉन्फेडरेशन है. तो दे आर नॉट, उन्होंने कोई किसी ने किसी को एक्वायर नहीं किया, किसी ने किसी पे हमला नहीं किया है. एवरीथिंग इज देयर, बट द इशू इज दैट दे जस्ट कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज, फॉर अ कॉमन पर्पस. थैंक यू सो मच. हाँ, देख लिया मैंने. अच्छा, एक और क्वेश्चन है. चलो, अच्छी बात है. सर, those who paid Sardeshmukhi, were they exempted from Chauth? See, Chauth is different. Chauth was being posed on alien kingdoms, and it was on the kingdoms. It was on the ruler, let's say. ठीक है, तो उस जगह का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो पे करेगा. लेकिन सरदेशमुखी वॉज इम्पोज्ड ऑन एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है. हाँ, तो वो जो टोटल टैक्स कलेक्ट करेगा उसका 1/4 वो देगा मराठास को, और उसके गारंटी ये मिलेगी कि भाई साहब इसके बदले जो है तुम पे अटैक नहीं. तो वो जो हेड होगा, वो जागीरदार जो होगा, वो जो भी मान लो कोई मनसबदार है, जागीरदार है, कोई छोटा सा नवाब है, उसको उसके ऊपर लगा रहे थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर हम रेड ना करें. इधर व्हेन दे एक्सेप्टेड that Maratha is their king, now you have to pay 1/10 of the standard land revenue. And this was being imposed. Sardeshmukhi was imposed on entire population. ठीक है. So Marathas, they developed as a confederation with its core or with its center at Pune, which was under the command of Peshwa. Pune was under the command of Peshwa. Gwalior was under the command of Scindias. Indore, it was ruled by Holkars. Baroda, it was ruled by Gaikwads. And Nagpur, it was ruled by Bhosles. So ये सारा, तो अब आप, that is where मराठा, मतलब इट वॉज अ काइंड ऑफ फेडरेशन जहाँ इंटरनल रूल इनका ही आपस में नहीं लड़ेंगे.
आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं है, मिलजुल के साथ में है। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिसी आएगी, कोई ऐसी चीज़ आएगी विच इज़ कॉमन फॉर ऑल, कॉमन थिंग, दे वर ऑल मराठास, दे वर ऑल मराठा चीफ्स, भोसले, होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पेशवा। पेशवा का हेड कहाँ था? पुणे। दैट इज़ वाई पुणे, बिकॉज एज पेशवा विल बिकम इम्पॉर्टेंट, एज पेशवा विल बिकम सिग्निफिकेंट, पुणे विल बी, इट विल ग्रो एज अ, आ रहे हैं सर, सब्र कर लो ज़रा सा, अरे होल्ड, स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है कहानी। उस दिन क्या था, गेम ऑफ थ्रोन्स, आज उससे खतरनाक चलेगा। नहीं, लिटरली टुडे व्हेन यू विल रीड दिस, दिमाग ऐसा करेगा कर क्या रहे हो ये बताओ, कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ, मीम आता है। सो दो बार ही समझाना पड़ता है। आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत रेयर हुआ है कि वो एक बार मैंने बताया और सबको कहानी समझ में आ गई, क्योंकि वहाँ कहानी समझ में आएगी तभी ट्रीटीज़ याद रहेंगी। वो बहुत सारी ट्रीटीज़ आने, एक्चुअली बहुत सारी ट्रीटीज़ आने वाली हैं। फाइन, सो दिस इज़ हाउ दे मराठा कॉन्फेडरेशन ने जो है काम किया। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी, and it is very, I'm very, no, to be very honest, even though someone is watching online, but it is very difficult to teach this part in Pune or somewhere, because, and I used to tell, bhai, don't get emotional in this. I am not someone who has made this history. It is your historians who have hidden certain things. लेकिन जो NCERT में लिखा है हम उसको तो मानेंगे ना, मानना, अब वो सच है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, doesn't matter, वो जो लिखा है वही सच है हमारे लिए, बिकॉज वो एग्जाम में उसी को वैलिड माना जाएगा जो NCERT में लिखा है। अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इफ़ यू फाइंड एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इन एनी सब्जेक्ट, इफ समथिंग इज, यू फाइंड दैट, अच्छा यू हैव रेड इट समथिंग समवेयर like 2-3 books there is contradiction, then you follow whatever is written in NCERT or any other state board, like तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब है वो भी वैलिड है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन, गवर्नमेंट अप्रूव्ड पब्लिकेशन है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड। सो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हिस्ट्री को लेके है, पॉलिटी या इकोनॉमी को लेके कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्या लक्ष्मीकांत में कुछ लिखा है और स्पेक्ट्रम में कुछ लिखा है, लेट्स से ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो फिर किसी की बात मत मानना, पॉलिटिकल साइंस की NCERT देख लेना, उसमें क्या लिखा वही सच है। फाइन, सो व्हाट हैपेंड दैट औरंगजेब वाज वाचिंग द राइज ऑफ Shivaji. Aurangzeb was watching the rise of Shivaji and he said, Deccan में मेरे अलावा कोई और। So immediately this person, Aurangzeb, sent Shaista Khan, who was the governor of Deccan. So Shivaji was someone who, no, अच्छा शाइस्ता खान को भेजा, I'll talk about later. शाइस्ता खान को भेजा and Shivaji was defeated by the hands of Shaista Khan, palace, and he lost Pune. So Shivaji was defeated and Mughal captured Pune. अच्छा, then what happened? 1663 शिवाजी ने काउंटर अटैक किया। सो पहला अटैक मुगल्स ने, औरंगजेब ने भेजा, शिवाजी लॉस्ट Pune। 1-1.5 साल बाद जो है शिवाजी मेड अ सरप्राइज अटैक टू शाइस्ता खान मिलिट्री कैंप एंड पूना में जो मिलिट्री कैंप था, इन विच शाइस्ता खान सन वॉज किल्ड एंड शाइस्ता खान हिमसेल्फ हु वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, ही वाज इंजर्ड बैडली। फाइन, 1 साल बाद, सो 1663 पूना पे अटैक किया। 1664 शिवाजी अटैक्ड सूरत। सूरत, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट पोर्ट इट वॉज फॉर मुगल्स। अभी अंग्रेज़ नहीं आए, अभी अंग्रेज़ों को पोर्ट नहीं मिला, अंग्रेज़ों को पोर्ट मिल गया सॉरी, बट वहाँ जो मुगल वो था उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया एंड दे प्लंडर्ड इट। औरंगज़ेब ने बोला ज़्यादा हो गया, ये नहीं करना चाहिए था। एंड देन औरंगज़ेब प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव, ही सेंट राजा जयसिंह ऑफ अंबर टू काउंटर शिवाजी। सी, ही लर्न फ्रॉम अकबर। Battle of Haldighati, people used to treat Battle of Haldighati on the religious or let's say on the communal sites. No, it was not. Battle of Haldighati 1576. On one side it was Rana Pratap of Mewar, on the other side it was the Mughal army. Mughal army was led by whom? Raja Man Singh. And one of the most, let's say, brave and courageous contingent of Rana Pratap
was led by Hakim Khan Sur, was an Afghan commander. Understand? Hakim Khan Sur is fighting for Raja Man Singh is fighting for Mughals. There is no religion. There is only one thing: domination over land, expansion of. कोई और कोई नियम नहीं था. There was just one rule. अब वो पोर्ट्रे कर देते हैं. So राजा जय सिंह ऑफ अंबर को जो है भेजा औरंगजेब ने. He went, he defeated and he captured the fort of Purandar. And then came the Treaty of Purandar. दो Treaty of Purandar आएगी, ध्यान रखना. पहली Treaty of Purandar, (1665). And according to this treaty, Shivaji surrendered 23 out of 35 forts he had to Mughals. He was left with only 12 forts. 12 forts बचे. उस जगह के जो 35 forts थे उसमें से 23 were surrendered to Mughals, and he was being left with 12 on the condition of being loyal to the Mughal Empire. On the condition of being loyal to the Mughal Empire. And बदले में शिवाजी को क्या मिला? बदले में मिला कि मुगल्स ने बीजापुर एम्पायर का कुछ हिस्सा जो है वो उनके नाम कर दिया. फाइन. 16 आफ्टर शिवाजीज डेथ, तो शिवाजी ट्राइड, पकड़ेगा, एस्केप होगा, फिर वो लुका छुपी चलती रही. एंड आफ्टर हिज डेथ इट वाज हिज सन शंभाजी एंड देन राजा राम हु ब्रीफली फॉट विद द मुगल आर्मी. शंभाजी वाज कैप्चर्ड बाय औरंगजेब एंड एग्जीक्यूटेड. फाइन. राजा राम की डेथ हो जाती है एंड 1699 से when Raja Ram died, the second son of Shivaji, so he had two sons, Shambhaji and Raja Ram. So Shambhaji was executed. Shambhaji was executed. Chhatrapati Shahu was released. And Tarabai जो हैं वो रूल करना शुरू करती हैं on the name of the infant of Raja Ram. That was Shivaji the second. वो भी कहानी ख़त्म हो जाती है. इधर क्या होता है, जैसे औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में छत्रपति शाहू, तो शाहू जी वॉज रिलीज्ड एंड देन ही केम एंड ही बिकेम द छत्रपति. नाउ व्हाट हैपेंड? 1713, अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, व्हेन when Chhatrapati Shahu appointed Balaji Vishwanath as the Peshwa. So ये later Peshwas में पहले हैं. Earlier Peshwas थे. If you want, you can note down. Earlier Peshwas, लिख लो बस. सोनोपंत दाबीर लिखते जाओ 1 2 3 4 करके. नंबर 1, सोनोपंत दाबीर फर्स्ट अनऑफिशियल पेशवा 1640 to 1652. सोनोपंत दाबीर 1640 to 1652, फर्स्ट अनऑफिशियल पेशवा. सेकेंड, श्यामपंत कुलकर्णी रांझेकर. श्यामपंत कुलकर्णी रांझेकर. श्यामपंत कुलकर्णी रांझेकर 1652 to 1657. पेशवा अंडर शाहजी भोसले. ही वॉज पेशवा अंडर शाहजी भोसले. Shahaji Bhosle was father of Shivaji. Shahaji Bhosle was father of Shivaji. अच्छा. Then Moropant Pingle. Moropant Pingle 1657 to 83. 1657 to 1683.
Moropant Pingle 1657 to 1683, he was Peshwa under Shivaji. अब ये मैच करने को आ सकता है, एक तरफ पेशवा एक तरफ छत्रपति का नाम लिखा हो सकता है. दिस इज अ पॉसिबल क्वेश्चन, फाइन, इसलिए लिखवा रहा हूँ. देन नेक्स्ट मोरेश्वर पिंगले. मोरेश्वर पिंगले 1683 to 89. मोरेश्वर पिंगले 1683 to 89. पेशवा अंडर संभाजी. पेशवा अंडर संभाजी. नेक्स्ट रामचंद्र पंत बवाड़ेकर. रामचंद्र पंत बवाड़ेकर पेशवा अंडर राजाराम. So he was from 1689 to 1708. Ramchandra Pant Bavadekar, 1689 to 1708. 1708 to 1711, it was Bahiroji Pingle. Bahiroji Pingle, 1708 to 1711. Bhairoji Pingle 1708 to 1711. Peshwa under Shahu the First. Shahu, Chhatrapati Shahu first. Then Parshuram Kulkarni. Parshuram Kulkarni 1711 to 1713. Again, he was under also Shahu the First. Same Chhatrapati. 13. And then Balaji Vishwanath 1713 to 1720. And he was, यहाँ से पेशवा की पोजीशन बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है. Then it was Balaji Vishwanath, again Shahu the First, same. तो इनके दौर में 3 पेशवा हुए. 3 नहीं, एक्चुअली 4 हुए. 4 भी नहीं हुए, हाँ 4 हुए, 5 हुए. So what happened? Shahu the First appointed Balaji Vishwanath as Peshwa in 1713. 1713 में. अच्छा, I have told you that after death of Aurangzeb, the Mughals were weak. They started to be weak, and the most important contribution of Balaji Vishwanath was वो जो मराठा कॉन्फेडरेशन बिखर रहा था, that they were not having trust on the position of छत्रपति, उसका कंसोलिडेशन का काम किसने किया? उसका कंसोलिडेशन का काम किया बालाजी विश्वनाथ ने. मीन्स ही ब्रॉट ऑल द मराठा चीफ्स ऑन द साइड ऑफ पेशवा, ऑन द साइड ऑफ छत्रपति. ही ब्रॉट ऑल द मराठा चीफ्स ऑन द साइड ऑफ छत्रपति. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that he did, 2 important things. Now someone was asking that was this hereditary. Now it becomes hereditary. After Balaji Vishwanath it became hereditary, or it was Balaji Vishwanath who made it hereditary, who left such system that it became hereditary. 1719 Balaji Vishwanath was in, or he assisted Farrukh Siyar, who assisted Sayyid brothers in deposing Farrukh Siyar. मतलब अब मराठास का लेवल वहाँ हो गया था कि वो मुगल बादशाह को हटाने का डिप्लोमेसी का काम शुरू कर दिया था. मतलब they have reached at peak. This is from 1721. Sorry, this is 1713 to 1721. बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इसीलिए बालाजी विश्वनाथ से हम पेशवाशिप को अलग नज़रिए से देखते हैं. उससे पहले वाले पेशवा देवर प्राइम मिनिस्टर हु आर वर्किंग अंडर छत्रपति. वापस आया था ना बाद 17 औरंगजेब की डेथ के बाद उनका वो उसको रिलीज़ किया था ना बहादुर शाह फर्स्ट ने.
तब तक हाँ, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा था दैट द मराठा कॉन्फेडरेशन जो भी हमने देखा ना, भोसलेज एंड गायकवाड़ जी दूसरे मराठा सरदार थे, वो टूट रहे थे। 1721 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है, फाइन, एंड एज सून एज ही डाइज स्टार्ट्स द मूवी बाजीराव मस्तानी। देखिए फर्स्ट सीन, अ यंग बॉय कम्स एंड क्लेम्स दैट मैं बालाजी का पुत्र। And why? So that Chhatrapati was sitting, that was Chhatrapati Shahu, he was sitting, and he asked two things. He said that attack on the route because Mughals are weak. Remember? देखी बाजीराव मस्तानी? देखी नहीं देखी? अब देखना जाके, बाजीराव मस्तानी देखी, देख लेना। उसमें हाँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम सर्टेन वो जो भी ड्रामेटाइजेशन के लिए जो चीज़ें करी गई हैं, उसके अलावा मोर और लेस हिस्ट्री का जो फ्लो है बाय एंड लार्ज वो सही है। तो नया लड़का, द फर्स्ट सीन दैट इज 1721 एंड नाउ स्टार्ट्स द नो बाजीराव द फर्स्ट। He was just 20 years old when he succeeded बालाजी विश्वनाथ। वो जो पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल एक यंग उसका दिखाया गया, 20 साल का लड़का, वो क्लेम करता है दैट आई विल बी द नेक्स्ट पेशवा, and he became. And if someone is known, उसमें एक और सीन है कि जब वो निज़ाम के साथ डील कर रहा होता है और निज़ाम कहता है शिवाजी की बात तुम ही हो, और वो सच बात थी। Thereafter Shivaji, if someone was known for its guerrilla tactics, it was Balaji, it was this person, Bajirao. It was Bajirao. 1738 guerrilla tactics क्या होता है? हाँ, छुप के सडन सरप्राइज अटैक, लाइक शायद एमपी से कोई नहीं, कहीं से भी, इट्स क्या करना है, जल्दी बता दो क्या करना है। फैन बंद करना है, सिंपल। कोई बात नहीं, ठीक है, एसी चल रहा है ना। So what is guerrilla warfare? What is guerrilla warfare? जहाँ surprise है, like someone is going and you will not even realize, and all of a sudden, और ऐसा अटैक ऑल आउट अटैक होता था वो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ देना है, मतलब जब तक सब खत्म नहीं करना, अटैक में रुकना नहीं है, unless and until you finish the job you are not going to stop. Depending on where they were attacking. During the time of these two, Shivaji and Bajirao, it was on a very large scale. मतलब you surprise the enemy by your strength and shouting and war cries and everything. और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, इसलिए आप देखो जहाँ पर भी इंसर्जेंसी हमने देखी मॉडर्न टाइम्स में भी, चाहे नक्सलिज्म में हमने देखी, आज के टाइम में हम कहते हैं उसे एम्बुश करना, दैट इज़ व्हाट गुरिल्ला वॉरफेयर इज़। आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखोगे जिस टाइम पे वहाँ मिलिटेंसी थी या वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म चल रहा था, वो यही टेक्निक यूज़ होती थी। जनरली ये वहाँ कारगर है जहाँ पहाड़ और जंगल ज़्यादा हैं। वाई दे वर, बिकॉज दे वर ऑन द साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। किसको? अरे वो कभी जीत ही नहीं सकते वहाँ। उसका रीज़न है, देखो अमेरिकन्स या रशियंस कभी भी अफ़गान या इस तरफ की टेरिटरीज में नहीं जीत सकते। उसका रीज़न ये है, इफ़ यू सी दे आर फ्रॉम प्लेन्स, दे आर फ्रॉम ग्रासलैंड्स। अमेरिकन्स हो चाहे रशियंस हो, साइबेरिया और उधर भी चले जाओगे तो सीधे सीधे मैदान है, उनको वो वाली लड़ाई समझ में आती है। अफ़गानिस्तान आ गए, गुफाएं गुफाएं, वो इस गुफा में घुसते थे, पीछे से दूसरी गुफा से निकल के पट से गोली पड़ती थी। इसलिए वो इतने सालों भी रह के दे वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द टेरेन। दे आर फ्रॉम ग्रासलैंड्स एंड द टेरेन दे वर फाइटिंग, दैट इज व्हाई दे लॉस्ट इन वियतनाम। कभी कभी अमेरिकन ज़्यादा बहस कर रहा हो ना, टेल मी अबाउट वियतनाम, टेल मी अबाउट इराक, अफगानिस्तान, दे हैव फेल्ड मिजरेबली because their soldiers, though that is no doubt, मतलब their tactics and their weapons and they are like phenomenal, उनके पास जो equipments हैं
उनके पास जो आर्मी के पास, इवन हमारी आर्मी से बहुत ऊपर है, हम उन्हीं से तो खरीद रहे हैं ना। और जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी बेस्ट चीज़ तो बेचेगा नहीं, कोई भी देश अपना बेस्ट वेपन टैक्टिक तो बेचेगा नहीं, और हम कह रहे हैं हम उनसे लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास आज तक उन्होंने F-16 नहीं दिया। दैट इज़ वाई वी हैव टू रिसॉर्ट टू राफेल। बट व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग ऑन टेरेन्स, माउंटेनियस टेरेन्स और हिली टेरेन्स और द वे अफगानिस्तान वाज, वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका ब्रेन ही नहीं, मतलब वो आदत नहीं है। लाइक आप पहाड़ों में घूमने जा सकते हो, जो प्लेन्स में हम रहते हैं, लाइक वी कैन गो टू अरुणाचल फॉर 5-10 days, आफ्टर दैट यू विल फील कम बैक, एम आई राइट? आई वेंट देयर फॉर 2 months, और 15 दिन के बाद लग रहा था मैं क्यों आ गया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इट वॉज द मंथ ऑफ May, June, और वहाँ बारिश शुरू हो गई। एक दिन मैं हुआ, थोड़ा सा गर्मी लग रही थी, मैं खिड़की खोल के सो गया। तो मैं गेस्ट हाउस बना हाइट ईटानगर में, 4-4:30 बजे, और वहाँ सुबह जल्दी हो जाती है बिकॉज 1 घंटा पहले उनका टाइम जोन भी गड़बड़ है। सुबह 4 बजे रोशनी हो जाती है, प्रॉपर रोशनी हो जाती है। आँख खुली, थोड़ी देर कुछ समझ ही नहीं आया, वो एक खिड़की खुली थी, बादल अंदर आ गए, तबीयत खराब हो गई। कमरे में देख रहा हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, रोशनी आ रही है बट इट्स लाइक ऑल वाइट। बहुत देर बाद रियलाइज हुआ बादल अंदर आ गए। तो ये तो वहाँ मौसम है। तो वो घूमने के लिए, और यू नो फॉर अ टूरिज्म, फॉर दोज हु आर लिविंग इन प्लेन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट यस फॉर दोज हु आर लिविंग इन प्लेन्स इट इज़ वेरी गुड प्लेस। बट इफ यू आस्क गो एंड लिव देयर, यू कांट। 15-20 days ऑफ कॉन्टिन्यूस रेन्स, स्टॉपिंग नॉट, लाइक 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकती है। 15-20 दिन लगातार की बारिश, दिल्ली तो डूब जाएगी, इतने में बह जाएगी। 3 घंटे की बारिश में तो जो है ना, न्यूज़ चैनल पे आने लगता है, दिल्ली में हुई ज़ोरदार बारिश, सबसे पहले मिंटो रोड डूबता है, वहीं से करोल बाग ये डूबेगा, फिर ITO के पास पानी भरेगा, वो आना शुरू हो जाता है। 15-20 दिन की बारिश। सो दिस इज़ व्हाट गुरिल्ला वॉरफेयर इज़, गुरिल्ला टैक्टिक इज़, कि जहाँ पर is a sudden surprise attack. So Bajirao the first, he was the one जिसने शिवाजी के बाद इसको बहुत यूज़ किया. He conquered Central India, Rajputana, and extended his empire to Deccan and Gujarat. So गुजरात, राजस्थान, तो इसने जो मराठा कॉन्फेडरेशन का जो स्ट्रेच था उसको बढ़ाया. And gradually he raided Delhi in 1738. He raided Delhi in 1738. Important है. He reached Bengal and Odisha 1740. 1740 Bengal, Odisha, and 1740 he died. फिर आखिर में उसने एक शेर कहा होगा कि की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम इश्क ना करते तो हुकूमत करते. He died. The reason that is being shown थोड़ा सा ड्रामेटाइज्ड है, लेकिन मूवी में रीज़न बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाया गया. He died of illness and then he fell in love with that. Yes, that's all. It's true. हाँ ना, ट्रू. हाँ, Bajirao 1 was undefeated. It was so good. He was good. There is no doubt in that. So he died 1740. At the age of like 39-40 years he died. And but he died undefeated. हारा नहीं था कभी. And after him came Balaji Bajirao. Balaji Bajirao.
popularly known as Nana Sahib. He was also 20 years old when he became the Peshwa. He was son of Bajirao. So Balaji Vishwanath, Bajirao, बालाजी और फिर दोनों को ब्लेंड कर दो तो बालाजी बाजीराव. अरे Balaji Vishwanath, then Bajirao, and he's Balaji Bajirao. Fine. Khair, he continued the expansion that was done by his father. He was the same guy. मूवी जिन्होंने अब देख लेना एक बार, अच्छी भी लगेगी, वीकेंड पे टाइम भी है. इट्स अ गुड वन. हिस्ट्री थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी. एंड देयर आर सम मूवीज व्हिच आई विल से कि हाँ आप देख सकते हो. जैसे ये देख सकते हो आप, मंगल पांडे देख सकते हो. 1857 का रिवोल्ट जब आएगा तो उससे पहले देख लेना एक बार, टाइम मिलेगा तो. सर ये अजीब टीचर हैं, ये बोलते हैं मूवी देखो. हाँ मतलब हमें तरीके पे नहीं जाना, हमें नतीजे पे जाना है. तरीका कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, नतीजा सही होना चाहिए. सो यू विल सी इन अ मूवी, जिसने देखी होगी तो एक देयर वाज अ यंग बॉय हु वाज बीइंग स्लैप्ड बाय हिज मदर. प्रियंका चोपड़ा मारती है, ये वो है. माँ से तो कोई भी पिट लेता है. हम भी पिट जाते हैं अब भी. घर जाते हैं तो कभी कभी हमारी अम्मी का मूड आता है तो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो he was there till 1761. Now 1761 again a very turning point in the history of Marathas. Third battle of Panipat between Marathas and Ahmad Shah Abdali. Third battle of Panipat between Marathas and इस पे मूवी है पानीपत. बट मैंने उसको देखी नहीं तो आई हैव नो आइडिया. नहीं मैंने देखी नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं. अब्दाली संजय दत्त बना था. हाँ आई डोंट नो, मतलब हाँ मुझे बस उतना याद है, प्रोमोज में देखा था. ठीक है, मूवीज़ जहाँ तक ठीक है वहाँ देख सकते हैं. ये मैंने देखी नहीं तो मुझे आइडिया भी नहीं कि उसके अंदर कितना सही कितना गलत, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. सो व्हाट हैपेंड 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली. इस बैटल में इन भाई साहब का, किनका, बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव और कज़न सदाशिव राव, दोनों की डेथ हो जाती है. In this third battle of Panipat, 1761, Vishwas Rao, who was son of Balaji Bajirao, and Sadashiv Rao, who was his cousin and a good mentor and friend and brother, both of them died. And when he heard this news, he died. Yes. तो जब उन दोनों की डेथ की खबर इसको सुनी, शॉक इतना लगा, ये भी चला गया. Maratha Empire now became vacant. There was no one. There was only one person, the eldest surviving member of this Peshwa family was Madhav Rao the First. So, Madhav Rao the First, and he was their Peshwa from 1761 to 1772. लेकिन अब क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन वैक्यूम हो गया. ऑल ऑफ अ सडन वैक्यूम हो गया. 3-4 मेन, ये तो लाइन में थे ही नहीं ना कहीं से कहीं तक, क्योंकि बालाजी ही वॉज ऑल्सो यंग. तो ये आप ये समझिए कोई 20-22 साल का है, यहाँ तक आते आते वो 40 साल का होगा, उसका लड़का था. तो देवर लाइक कि ठीक है, अभी पेशवाई का इनके ऊपर कोई बोझ आना नहीं था, लेकिन इनको बनना पड़ गया Madhav Rao the First को. बट ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल. इंटरनल डिसकंटेंट इतना था दैट आफ्टर दो ही वॉज रूलर, लेकिन यहाँ के बाद यानी कि 1761 के बाद द डोमिनेंस ऑफ पेशवाई विच वॉज
established either by Balaji Vishwanath or by Bajirao first, it lost its essence. And this internal जो एक dissensions थे, that ultimately led to the Anglo-Maratha Wars. एंग्लो मराठा वॉर्स, मतलब अब ये आपस में लड़ेंगे और उस लड़ाई में कौन कूदेगा? उस लड़ाई में कूदेंगे अंग्रेज़। अंग्रेज़ क्यों कूदेंगे? सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, हम 1772 मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर विल स्टार्ट इन 1775, ठीक है। हम जिस स्टेज पे हैं 1775 की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक कहानी ये हो चुकी है कि कलकत्ता ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मद्रास ने साउथ पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया है, तीसरा इंपॉर्टेंट सेंटर बॉम्बे अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तो उनको एक डेस्परेशन था कि हमें कुछ करना है, हमें भी कलकत्ता या मद्रास की तरह कुछ अचीव करना है। वी ऑल्सो हैव टू अचीव सर्टेन। अच्छा, सो they started to interference in the Maratha internal politics so as to gain advantage, but we will see what happened. So the first Anglo-Maratha War. First Anglo-Maratha War, 1775 to 1782. (1775 to 1782). अब यहाँ से हर कैरेक्टर को पकड़ के चलना वरना मिस हो जाएगा, ठीक है। कहानी शुरू होती है व्हेन देयर वाज अ वॉर ऑफ सक्सेशन और व्हेन देयर वाज अ स्ट्रगल ऑफ पावर बिटवीन सवाई माधवराव एंड रघुनाथ राव। दोनों को पेशवा बनना था, लेकिन ये भाई साहब 3 साल के थे। ही वॉज एन इन्फेंट, सो टेक्निकली ही वॉज सपोर्टेड बाय नाना फडणवीस, हु वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर, जैसे अकबर के टाइम पे बैरम खान थे। सो दो ही वॉज अ स्मॉल किड, बट ही सेड कि पेशवा इसी ने बनना है। रघुनाथ राव was let's say I think he was his uncle, I don't remember, uncle वो चाह रहा था कि पेशवा मैं बनूं। यहाँ से पेशवाई के लिए लड़ाई शुरू होती है। नाना फडणवीस who was controlling major Maratha sardars, he supported whom? Savai Madhavrao. On this Raghunath Rao seeked help from the Bombay Presidency. तो ये कहा जाते हैं ब्रिटिश के पास, हाँ सवाई माधवराव। अच्छा, ये कहाँ जाते हैं? ब्रिटिश के पास, हेल्प मी टू बी द पेशवा। एंड एट दिस एक ट्रीटी होती है इन दोनों के बीच, एंड दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत। इन दोनों के बीच 1775। लिखो मत, मैं इसको जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं मैं मिटाऊंगा नहीं, लेकिन कहानी सुनते रहो, लिखने में मत टाइम वेस्ट, यू विल मिस द लिंक। 1775 में इनके बीच एक ट्रीटी होती है, दैट वाज ट्रीटी ऑफ सूरत। इसके तहत ये होता है कि द ब्रिटिश विल हेल्प रघुनाथ राव टू बी द पेशवा एंड गेट कंट्रोल ओवर पूना, और इसके बदले रघुनाथ राव विल गिव हिम द पोर्ट्स ऑफ सालसेट एंड बसीम, वसई जो मॉडर्न डे है। अच्छा, मतलब ब्रिटिश को 2 पोर्ट मिलेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने क्या कहा कि हमें 2 पोर्ट मिल जाएंगे और हम तुम्हें हेल्प करेंगे पेशवा बनने में। इतना समझ में आया? अब अभी जिस पॉइंट पे है 1775, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका है, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता को कुछ सुपरसीडिंग पावर्स मिलती हैं मद्रास और बॉम्बे के ऊपर।
कैलकाटा प्रेसिडेंसी रिजेक्ट्स ट्रीटी ऑफ सूरत, बोले कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पैसे की कमी है और तुम बेवजह जो है यू आर फॉलोइंग इनटू इंटरनल अफेयर्स ऑफ Marathas. So there is no need. So the Supreme Council, which was sitting at Calcutta, the Supreme Council, they said that we are not. Acha. Despite of this treaty, रघुनाथ राव एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि ब्रिटिश की कंबाइंड आर्मी जो है वो पेशवा के ऊपर अटैक करती है, यानी कि इन पे अटैक करती है और जीत जाती है। फिर से बताऊं? नहीं। ट्रीटी ऑफ सूरत कैंसिल हुई और बावजूद उसके ये दोनों क्या करते हैं, मिलके अटैक इधर करते हैं और पेशवा जो है वो हार जाता है। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द गवर्नर जनरल। इन भाई साहब को गुस्सा आता है, बोले मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने बोला इस ट्रीटी को कैंसिल करने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स entered a treaty with Nana Fadnavis. Warren Hastings entered a treaty with Nana Fadnavis, that is Treaty of Purandar. Treaty of Purandar, and this was 1776. Warren Hastings ने बोला I am Governor General, you are Governor, मैं बड़ा हूँ. So he entered a treaty with Nana Fadnavis, and and according to which रघुनाथ राव को हटाया जाएगा। रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन, रघुनाथ राव इसको लेके डील हो गई कि रघुनाथ राव को क्या होगा, हटा दिया जाएगा, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा एज अ पेंशन, और बसीन आपको वापस कर दिया जाएगा, सिर्फ ब्रिटिश सेलसेट रखेगी। 2 पोर्ट्स थे तो उन्होंने बोला उसको पेंशन दे दो और हम सिर्फ 1 पोर्ट रखेंगे, हमें 2 पोर्ट की ज़रूरत नहीं। इन्होंने बोला हम कुछ कर, तुमने बड़ा जो है बंगाल वहाँ जीत लिया तो ज़्यादा जो है होशियार बन रहे हो। डिस्पाइट ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी शेल्टर्ड रघुनाथ राव। डिस्पाइट ट्रीटी ऑफ पुरंदर, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी शेल्टर्ड रघुनाथ राव। नाना फडणवीस ने बोला ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक इधर से एक, मतलब उनको तो यही लगेगा ना कि एक उसके साथ डील कर रहा है, एक हमारे साथ डील कर रहा है, दोनों हाथों में जो है ये वो कर रहे हैं। बोला गो टू हेल। 1777, Nana Fadnavis entered a treaty with Nana Fadnavis entered into a treaty with French, और जो वेस्टर्न कोस्ट था वो फ्रेंच को एक्सेस मिल गया। फ्रॉम नोवेयर फ्रेंच अपीयर्ड, फ्रॉम नोवेयर फ्रेंच, क्योंकि 1763 तो वो जा चुके थे। ट्रीटी ऑफ पेरिस वो प्रेजेंट थे, बट दे वर डूइंग व्हाट, दे वर जस्ट डूइंग ट्रेड। लेकिन यहाँ उनको एक्सेस मिला थ्रू मराठास द वेस्टर्न कोस्ट का। अच्छा, अब अंग्रेज़ों ने बोला यार ये का मतलब ठीक है, आपस में बात चल रही थी, तीसरी पार्टी कहाँ से आ गई। अल्टीमेटली दिस लेट ब्रिटिश ने कहा अटैक पुना, एंड दिस लेड टू बैटल ऑफ वडगांव 1777। मल्टीपल बैटल्स हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, तो देयर वाज अ बैटल ऑफ वडगांव इन विच द मराठास डिफीटेड ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने जब पुणे पर अटैक करने की कोशिश की तो वडगांव के पास उनको मराठास ने क्या किया, मराठास ने हरा दिया। देन 1779 में होती है ट्रीटी ऑफ वडगांव। 1779 में होती है ट्रीटी ऑफ वडगांव, वेयर मतलब अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी कहानी इनकी रुकी नहीं और अगले 3 साल ये फिर लड़ते रहे। Ultimately, British and Marathas, they continuously fought for the next 3 years, and this continuous fighting of 3 years was ended by, मैं dictate करा दूंगा, don't worry, Treaty of Salbai 1782. Treaty of Salbai 1782 ended the First Anglo-Maratha War. Result क्या हुआ? उन्होंने कहा सैलसेट और ब्रोच ये 2 पोर्ट्स मिलेंगे ब्रिटिश को। जो भी अच्छा, मराठास को ये कहा गया कि आप जो भी हैदर अली ने आपके डेक्कन के पोजेशंस ले लिए हैं, मैसूर राइज हो रहा था,
सो जो भी हैदर अली ने आपके डेक्कन के पोजेशंस ले लिए, आप उनको वापस ले सकते हैं। मराठास से ये प्रॉमिस लिया गया कि आप किसी भी तरीके से फ्रेंच के साथ कोई रिलेशन नहीं रखोगे। रघुनाथ राव को पेंशन दी गई और माधवराव टू वॉज एक्सेप्टेड एज पेशवा। यह भी पहला एंग्लो मराठा वॉर है। हो तो गया, कितने साल है? 7 साल हो तो गए, 1775 to 82। विच ट्रीटी? ये वाली, वो वाली? ट्रीटी ऑफ सालबाई। French were helping. French at that point of time were helping Marathas by providing arms and ammunitions, advanced arms and ammunitions. Indirectly. वो अभी ऐसे टीपू सुल्तान को भी हेल्प करेंगे, the French. फाइन, जो मराठा मैसूर में उनको लगेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज होगा। यू कैन नोट डाउन। यू वांट टू नोट डाउन और यू वांट टू जस्ट सर लिखवा दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। लिखवा दूँ? कहानी मैंने तो बोला था कहानी अच्छा है, लिखो। स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82। The struggle for power between Savai Madhavrao and Raghunath Rao. The struggle for power between Savai Madhavrao and Raghunath Rao was the main cause for the first Anglo-Maratha War. Was the main cause for the first Anglo-Maratha War. Madhavrao got support of Nana Fadnavis. Madhavrao got support of Nana Fadnavis. And Raghunath Rao sought British help. Raghunath Rao sought British help to gain the position of Peshwa. Raghunath Rao sought British help to gain the position of Peshwa. First up, the British, in bracket Bombay Presidency. The British, that is Bombay Presidency, कहाँ से? The British, in bracket Bombay Presidency, entered into an agreement with Raghunath Rao. Entered into an agreement with Raghunath Rao, which is known as Treaty of Surat 1775. Which is known as Treaty of Surat 1775. According to the conditions of this treaty, according to the conditions of this treaty, in order to get British help to restore him to Pune, in order to get British help to restore him to Pune, Raghunath Rao ceded the territories of Raghunath Rao ceded the territories of Salsette and Bassein. Ceded the territories of Salsette and Bassein. Sir, can you repeat from Raghunath?
Raghunath Rao ceded the territories of Salsette and Bassein to British. तो पेशवा बनने के बाद तो मिलेगी ना, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट तो यही बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में ऐसा होगा तो ऐसा। अच्छा, द ब्रिटिश and the army of Raghunath Rao, the British and the army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won. The British and the army of Raghunath Rao attacked Peshwa and won. Full stop. The British Calcutta Council under Warren Hastings. The British Calcutta Council under Warren Hastings annulled this treaty. And a new treaty that is Treaty of Purandar 1776. That is Treaty of Purandar 1776 was signed between Calcutta Council and Nana Fadnavis. Was signed between Calcutta Council and Nana Fadnavis. Accordingly, after full stop, Raghunath Rao was given pension. And British will retain only Salsette. Change the paragraph now. The British establishment at Bombay violated this treaty. The British establishment at Bombay violated this treaty and sheltered Raghunath Rao. The British establishment at Bombay violated this treaty and sheltered Raghunath Rao. In 1777, Nana Fadnavis went against his treaty with Calcutta Council. In 1777, Nana Fadnavis went against his treaty with the Calcutta Council and granted a port on the west coast to the French. This led the British to advance a force towards Pune. Leading to Battle of Vadgaon
in which the British were decisively defeated. Battle of Vadgaon, in which the British were decisively defeated. The English were forced to sign Treaty of Vadgaon. The English were forced to sign Treaty of Vadgaon in 1779. Treaty of Vadgaon in 1779. There was a series of battle between the English and the Marathas. There was a series of battle between the English and the Marathas, at the end of which Treaty of Salbai was signed, at the end of which the Treaty of Salbai was signed, which ended the First Anglo-Maratha War, which ended the First Anglo-Maratha War in 1782. In 1782. Under this treaty, change the paragraph. Under this treaty, the East India Company retained Salsette and Broach. Under this treaty, the EIC retained Salsette and Broach. It also guaranteed Marathas. It means the treaty. It also guaranteed Marathas that they would retake their possessions. In Deccan. Possessions in Deccan from Hyder Ali of Mysore. The Marathas also promised that they would not grant any more territories. That they would not grant any more territories. To the French. इंग्लिश बैक ऑफ कर गए थे दैट्स इट, लेकिन उसके बाद भी सीरीज ऑफ बैटल हुई तो उतनी सिग्निफिकेंट। यहाँ दो ही ट्रीटीज जो हैं वो आपको तीन हैं बेसिकली, एक वो सूरत, पुरंदर एंड देन सालबाई। अच्छा, इसके बाद मोर और लेस यू कैन से दैट द मराठास बिकेम एन एलाई ऑफ ब्रिटिश। द मराठास बिकेम एन एलाई ऑफ ब्रिटिश। The Governor General who will succeed John Shore was Wellesley.
The Governor General who succeeded John Shore was Wellesley. I've told you there are 5 pillars. Number 1, Kingmaker. Number 2, Zamindari. And now comes the third one, the policy of subsidiary alliance. This is the third pillar. Why I'm saying this is the third pillar, subsidiary alliance. सुन लो, एक बार में याद हो जाएगी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटीड. इस पॉइंट तक आते आते, क्योंकि कॉर्नवालिस के टाइम तक तो बैटल चलती रही, लेकिन वेलेस्ले का टाइम आया तो वेलेस्ले ने बोला यार अब इनको जो है ना जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ जंग का खौफ ही काफ़ी है. He said कि अब इनको no need to fight with them, we'll just scare them that we will attack you. We'll just scare them that we will attack you. And if any one of the Indian kingdoms want that we should not attack them and maintain a friendly relationship, then they have to sign subsidiary alliance. Subsidiary alliance साइन करने के बाद ये होगा कि आपके ऊपर, आप जो है वो ब्रिटिश राज का जो है दोस्त हो और आप कंपनी आपके ऊपर किसी तरीके का कोई अटैक, कोई रेड नहीं करेगी. अच्छा था, ठीक है. सब्सिडरी अलायंस की 3 मेजर शर्तें थी. पहली शर्त ये थी दैट देयर विल बी अ ब्रिटिश contingent in the native army. First thing, there will be a British contingent in the native army, and why it was called the subsidiary or the subsidiary alliance. And the expenses of that British contingent will be taken up by the native ruler. मतलब आपके खर्चे पे आपकी आर्मी में एक और नई छोटी सी रेजिमेंट सॉर्ट ऑफ जोड़ दी जाएगी, विच विल बी द ब्रिटिश आर्मी, और उसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? आप उठाओगे. पहला. दूसरा, ना तो आप किसी और यूरोपियन पावर के साथ या किसी और इंडियन नेटिव रूलर के साथ किसी तरीके की कोई ट्रीटी कर सकते हो बिना हमारी परमिशन के. तो ना किसी यूरोपियन, फ्रेंच, डच कोई ट्रीटी नहीं, और इवन आपस में कोई ट्रीटी नहीं. दूसरी शर्त. तीसरी शर्त, दैट देयर विल ऑलवेज बी अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन योर कोर्ट. सो वो जो राजा का दरबार लगता होगा उसमें हमेशा देयर विल बी अ ब्रिटिश रेसिडेंट. एंड native rulers were very much ready to accept this. 3 शर्तें क्या? There will be a contingent in the native army, and the expenses of that contingent will be borne by whom? The native ruler. Second, neither you cannot have a treaty with other European powers, nor you can have treaty with other Indian native rulers without our permission. Third, there will be a British resident who will sit in your court, who will be the part of your court. क्या हुआ इससे? डिफेंस पे कंट्रोल आ गया, क्योंकि रेबल कहाँ से हो सकता था? आर्मी से. आर्मी कंट्रोल. फॉरेन अफेयर्स और ट्रेड पे कंट्रोल आ गया, क्योंकि किसी के साथ कोई ट्रीटी बगैर परमिशन के नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है गॉन. और इंटरनल अफेयर्स पे भी कंट्रोल आ गया, बिकॉज अ रेसिडेंट वाज देयर. एंड हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू साइन सब्सिडियरी अलायंस. दे साइंड इट. क्या? 1947 में इंडिया के साथ साइन नहीं करा के उनके साथ साइन कर दिया. ऐसे बहुत से थे, जोधपुर भी था. इसीलिए बहुत अच्छा उन्होंने एक और जो अभी हम देखेंगे इन दिस सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की जब हम बात करेंगे, सब्सिडियरी अलायंस अब भूलोगे तो नहीं? अब नहीं भूलोगे. So what happened? Many of the states, they started signing this subsidiary alliance, and that was the reason that at the time of independence there were 2 categories. One was the British provinces, another was the princely states. These were the princely states who signed this subsidiary alliance at various point of time.
They ultimately accepted British paramountcy. तो वो जो कहते थे ना हमारे ब्रिटिश के साथ संबंध हैं, जी बिल्कुल थे, लेकिन आपने उनकी गुलामी एक्सेप्ट करी थी इसलिए संबंध थे. सो ये जो सब्सिडरी अलायंस इट केम इन 1799 वेलेस्ले के दौर में आई. और and this became, so subsidiary alliance was, this is the first एंग्लो मराठा वॉर का कॉज क्या था? इंटरनल डिसेंट. ठीक है, जो वॉर ऑफ सक्सेशन या वॉर स्ट्रगल फॉर पावर था, दैट वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड, (1803 to 1805), second Anglo-Maratha War. So here the main cause was desire of Wellesley to impose subsidiary alliance on Marathas. What was the cause of this second Anglo-Maratha War? Was the desire of Wellesley to impose subsidiary alliance. The desire to impose subsidiary alliance. अच्छा, आई एम नॉट गोइंग इन, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा पिछली बार जैसा नहीं हो रहा था. हाँ, बट व्हाट हैपेंड हियर, that initially when this treaty was announced and Wellesley was very much interested in imposing these subsidiary alliance, Scindia, Bhosle and Holkar rulers, they denied. नहीं हुआ. सिंधिया, होलकर और भोसले जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम ये साइन नहीं करेंगे. इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया. इन द मीनवाइल क्या हुआ, पेशवा ने भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन पेशवा वॉज डिफीटेड एंड अल्टीमेटली इन 1802. तो बैकग्राउंड आता है 1802 से. तो जब ये सब्सिडियरी अलायंस हुई तो इधर जो दूसरी कॉन्फेडरेशंस थी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया. मना पेशवा ने भी किया. तो पेशवा के साथ एक बैटल होती है, दैट वाज बैटल ऑफ पूना. एंड इन दिस बैटल ऑफ पूना, आफ्टर दिस बैटल ऑफ पूना देयर वाज अ ट्रीटी विच वाज ट्रीटी ऑफ बसीन विच वाज साइंड 1802. एक और ट्रीटी आ जाती है, ट्रीटी ऑफ बसीन. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट दिस वन, उसमें है नहीं ऐसा कुछ. ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 जो है वो साइन की जाती है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें सिर्फ 6000 सिपाही होंगे, वो सेड, कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी जिसमें सिर्फ 6000 सिपाही होंगे, वो परमानेंटली पेशवा के साथ स्टेशन रहेगी. पहली चीज, ठीक है. और पेशवा कैन नॉट एंटर इनटू एनी ट्रीटी विथ एनीवन. तो दो चीजें जो है वो क्योंकि बड़ी पावर अब, क्योंकि 1799 टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल. नाउ देयर बिगेस्ट चैलेंज वाज मराठास. और मराठास में जैसे ही उन्होंने पेशवा को सरेंडर करवाया, दिस ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 वाज अ ग्रेट एडवांटेज टू देम. This Treaty of Bassein 1802 was a great political advantage to the British because this established their supremacy across whole subcontinent. मुगल्स पहले ही गायब थे, निज़ाम हैदराबाद साइन कर चुके थे और छोटे मोटे राज्य साइन कर चुके थे. मैसूर चैलेंज दे रहा था, तो मैसूर में टीपू सुल्तान जब तक था तब तक तो you can say he was the last one who gave some resistance to British before the revolt of 1857. किसी राजा ने उस दौर में हम कहें कि ब्रिटिश के आगे सरेंडर नहीं किया, इट वॉज टीपू सुल्तान. एट नो स्टेज. मराठास एट मल्टीपल टाइम्स दे हैव ट्रीटीज विद द ब्रिटिश, बट टीपू सुल्तान नेवर हैड एनी काइंड ऑफ, नीदर हिज फादर हैड एनी काइंड ऑफ ट्रीटी विद द ब्रिटिश. विल टॉक अबाउट मैसूर आफ्टर दिस. सो व्हाट हैपेंड, दैट ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 वाज साइंड.
सिंधिया एंड भोसले दे वर नॉट रेडी, हम नहीं मान रहे, पेशवा ठीक है हम कॉन्फेडरेशन से अलग हो जाएंगे लेकिन हम अंग्रेज़ों को सरेंडर नहीं करेंगे, हम अंग्रेज़ों को सरेंडर नहीं करेंगे. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, देन देयर वाज अ सीरीज ऑफ बैटल और 2 ट्रीटी साइन हुई. ट्रीटी ऑफ देवगांव 1703 and this treaty of Devgaon 1703 was with Bhosle. Sorry 1803. भावनाओं को समझो. कम से कम ये तो पता चला दिमाग जाग रहा है. Bhosle. Treaty of Devgaon 1803, British signed with Bhosle, and another was Treaty of Surji Arjangaon. (1803) and this was signed with Sindhias. अच्छा, अगर ये कंफ्यूजन हो कि कौन सी इन दोनों में भी ना इसी सीक्वेंस में हुई, एक्चुअली ये इन दोनों ट्रीटीज़ में कुछ 20 दिन 13-14 दिन का डिफरेंस था. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, इधर भी और इधर भी, कंफ्यूज नहीं होना. इधर भी तो देवगांव में डी पहले आ रहा है. हमेशा जब ऐसी चीज़ हो तो सबसे पहले देखा करो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो कहीं सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इधर बन रहा है. ऊपर भोसले, बी कमिंग फर्स्ट, एस कमिंग लेटर. सो रिमेंबर दिस, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी ट्रीटी हैं. सो basically in both these treaties, both these rulers, they signed the subsidiary alliance. What was this treaty? in दोनों treaties में इन दोनों ने अलग अलग subsidiary alliance को sign किया. अच्छा, the Holkars, they were still at war with them, and finally in 1805 they signed. They were also defeated. 1803 थी. इन तीनों ने साइन कर लिया. पेशवा ने पहले 1802 में साइन कर लिया था ट्रीटी ऑफ बसीन. तो यहाँ पर 4 ट्रीटी ऑफ बसीन 1802, देवगांव 1803, सुरजी अर्जन गांव 1803 एंड राजपुर घाट 1805. ये वो ट्रीटीज़ हैं जिसमें मराठा जो सरदार थे या जो पेशवा थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया. देन वी कम टू द थर्ड एंग्लो मराठा. और इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना इसमें, अगर क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता. हाँ, सब आ गए थे. नेक्स्ट, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. The Third Anglo-Maratha War 1817-1818. आखिरी कोशिश to regain the old prestige. Simple. Without any sugarcoating, I'll say this was the last attempt by the Marathas to gain their old prestige and to regain the possessions they had. Why? Because they were very much unhappy with the interference of the British resident in their affairs. Of course, the British resident who was sitting there, fine. अच्छा, एक और मूवी सलमान खान की देखी, वीर. हाँ, कौन थे वो, कौन सा वो ग्रुप था, क्या नाम था, ट्राइब पिंडारी. So the Pindaris were in Deccan at this point. 1817-1818 की बात है. So Pindaris were giving a good resistance to the British. Fine, दिखाया भी उसमें. What happened that British को ये शक हुआ
they suspected that these Pindaris are supported by Marathas. उनको शक क्या हुआ? वे डेक्कन में ही थे, इसी रीजन में थे, सेंट्रल इंडिया की तरफ थे. So they had this suspicion that the Pindaris are supported by and protected by Marathas. उनको लगा एक तो वैसे ही जो है हमें सरेंडर करवा रखा है, दूसरा यू आर अननेसेसरली हम जो कर भी नहीं रहे उसका इल्ज़ाम लगा रहे हो, बिकॉज ब्रिटिश वर नॉट एबल टू फाइट विद देम. द पिंडारीज नो डाउट दे गेव अ गुड रेजिस्टेंस. हाँ, लूट के भी चले जाते थे और मतलब दे वर कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ. तो हुआ क्या, पेशवा बाजीराव सेकंड, मल्हार राव होलकर एंड माधोजी भोसले. पेशवा बाजीराव सेकंड, मल्हार राव होलकर एंड माधोजी भोसले, इन्होंने क्या किया, एक कॉमन फ्रंट बनाया कि जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ है उससे हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के साथ लड़ेंगे, अब जो होगा देखा जाएगा. अच्छा सर, व्हाट सिंधियाज वर डूइंग? सिंधियाज को सरेंडर करवा दिया, पहले ही करवा दिया था, मतलब अभी उनके साथ देखना क्या होगा. दे ट्राइड बट ऑफ कोर्स बाय दिस टाइम the sword has loosened the edge, it's gone. मतलब they tried but उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि they gave a good resistance. No, the British won. This was a swift victory for them, and there were, yes, 2 treaties under this. तो बैटल हुई, ख़त्म हो गई, मराठास हार गए. अच्छा, पहली ट्रीटी होती है before the battle started, and that was Treaty of Gwalior with Sindhis. ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया. और ये मतलब इनको बैठा दिया, बावजूद उसके इनसे ट्रीटी करी. एंड मतलब दो दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर. सिंधियाज, शिंदे, दे आर सेम. सो सिंधिया इज द एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ शिंदे. ठीक है, ध्यान रखना है. सो सिंधियाज के साथ ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, इन विच नाउ द स्टोरी विल स्टार्ट, इन विच the Sindhyas gave up Rajasthan to British. In this Treaty of Gwalior 1817, the Sindhyas gave up Rajasthan to British, and the Rajas of that Rajputana remained as princely state till 1947. नहीं, यहाँ अलग, मुगल्स की कहाँ बात है, ये तो अंग्रेज़ों की बात हो रही है. अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, मनसबदारी और वो एक अलग कहानी है. यहाँ की अगर हम बात करें, बिकॉज दिस अफेक्टेड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो 1817 ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, द सिंधियाज गेव अप राजस्थान टू ब्रिटिश. और वहाँ जितने राजा थे, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, आमेर, अंबर, वो ढेर सारी जो राजपूताना रियासतें थी, ऑल दैट राजाज रिमेन्ड princely state after accepting the British paramountcy till 1947, or till they signed the instrument of accession to India. इसमें जोधपुर will play a very critical role in 1947. अच्छा, होलकर्स के साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ मंदसौर. ट्रीटी ऑफ मंदसौर होलकर्स के साथ साइन होती है, और एक 2-2.5 साल के बच्चे को बोला जाता है ही इज योर हेड एंड ही विल रूल अंडर ब्रिटिश गार्जियनशिप. नहीं, पंजाब के साथ भी यही हुआ, रणजीत सिंह के बाद. राजा दलीप सिंह, ही वॉज अंडर अ ब्रिटिश गार्जियनशिप, दे वर ग्रांटेड अ ब्रिटिश पेरेंट्स प्रॉपरली. राजा दलीप सिंह, जिनके सिग्नेचर से कोहिनूर चला गया. हाँ, डलहौजी ने करा था हरकत. अरे कोहिनूर की तो मैडम कहानी इतनी खतरनाक है कि वो कब वो चला गया ज़्यादा अच्छा है. क्यों? चलो ब्रेक भी हो जाएगा इससे. अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, फिर
कोहिनूर की कहानी सुनेंगे तो थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा. So Treaty of Mysore, Holkar surrendered. Peshwa surrendered in 1818. After this, the Peshwa surrendered. इसके बाद पेशवा was dethroned and pensioned. और पेशवा को कहाँ भेज दिया गया? उनको एक छोटी सी रियासत दी गई बिठूर, which is near कानपुर. That is why revolt of 1857 नाना साहेब पेशवा वो कानपुर में थे, because पेशवा को 1818 में कहाँ भेज दिया गया? अब तो सब पेंशन पे इस वक्त. तो इस वक्त सारे इंडियन जितने भी सो कॉल्ड उस दौर के राजे महाराजे थे सारे पेंशन और वो. और जो पेशवा की पूना में टेरिटरी थी, जो पेशवा की पूना में टेरिटरी थी, दैट वाज मेड द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. जो पेशवा की टेरिटरी पूना और आसपास थी, दैट वाज मेड द part of Bombay presidency. And this is how the third Anglo-Maratha war ended, and this is how the Maratha history is up to here. Any question, any doubt? मुझे अभी समझ नहीं आया कि इसमें शिवाजी की पूजा क्यों रखा. सर आपने कहा था मराठा पर नोट तो समझ में आ जाए क्योंकि वो छत्रपति थे. छत्रपति तो उसके बाद भी पैसे लगे. I think for the very first time. Yes, we can say that the idea. हाँ, स्वराज का जो आइडिया था वो एक रीजन था, लेकिन उससे ज़्यादा आई बिलीव बाजीराव वन इज मोर सिग्निफिकेंट व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ मराठा. हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी था, एक रीज़न वो भी था. फाइन. सो बट हाँ, मतलब आप जो बात बोल रहे हो वो भी वैलिड है कि अब आपको समझ में आया होगा कि किसको कितनी वैल्यू दी जाती. देखो, समटाइम्स इफ यू डोंट हैव हीरोज यू हैव टू क्रिएट देम. आई एम नॉट सेइंग शिवाजी इज नॉट अ हीरो, ही वाज. See, I really don't find when we read medieval history and people, there are people who used to. कुतुबुद्दीन ऐबक तो खैर नहीं उसमें आ सकता. इल्तुतमिश आप बात सी वो मुस्लिम रूल नहीं इस्टेब्लिश कर रहे थे, वो टर्किश रूल इस्टेब्लिश कर रहे थे. देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे थे. वहाँ पर भी आप कहोगे कि टर्किश और अफगानी मुसलमानों ने हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनको हमेशा डिमीन किया. उनमें रेशियल फाइट चलती थी. उन्होंने हमेशा भी, इट्स नॉट दैट मुस्लिम्स वर ऑल वन. यू विल फाइंड दैट दे वर रेसिस्ट. द टर्किश मुस्लिम्स दे वर रेसिस्ट. हाँ, पर्शियंस और अफगान से एक कोर्ट में नहीं आ सकते थे. पर्शियंस मुसलमान अलग खेल रहे थे, तुर्की मुसलमान अलग कर रहे थे, अफगानी अलग थे, और जो हिंदुस्तान के मुसलमान था उसकी बेचारे की कोई गिनती नहीं थी. एंड द बिगेस्ट, ठीक है, मुगल्स एंड ऑल यू सेड, आई डोंट केयर. मतलब मुगलई खाना, हाँ, agreed, a good contribution. Architecture, a good contribution, but that has not resulted in one of the reason that we easily were in this stage, whole of the country, that it was very easy for the British to take over. It was very swift for British to take over, and one of the reason to that was, let's say, the medieval rule starting from 1206 till 1707. Tell me one university, one educational institution that has been established for common people. किताबें लिखवा रहे थे. किताबें लिखवाना is not contribution. Contribution is when you empower the people. Rather, there are instances where they have destroyed, like Muhammad bin Bakhtiyar Khilji, Nalanda and Vikramshila, 1202 Nalanda, 1203 Vikramshila. Burnt, destroyed that university.
Why? Education is the Yes, it will empower the people and people will question them. पढ़े लिखे लोग ही सवाल करते हैं. आप एक इलिटरेट कम्युनिटी से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सवाल करे, वो प्रोटेस्ट करे, वो जवाब मांगे, अकाउंटेबिलिटी तय करे. All the big revolutions in the world, they are started from education. मार्टिन लूथर किंग क्या कर रहा था? मार्टिन लूथर क्या कर रहा था? When we talk about Renaissance, he translated Bible. He said, okay, they are making us fool. खुद monk था, खुद monastery में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते enlighten हो गया. Fine. कार्ल मार्क्स ने क्या किया? ठीक है, रेवोल्यूशन गलत साइड पे चला गया, आगे चल के वो मिलिटेंसी की तरफ एक वेव चली गई, लेकिन वो जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ? उसकी राइटिंग से ही तो हुआ. When you see Indian national movement, कहाँ से शुरू हुआ? जब educated middle class will take over, then the proper national movement will start. Even in post-independence period, you will see whether it is the JP's Andolan, it also started from universities. So World War II के टाइम पे यूरोप में एग्रीमेंट थे ना कि यूनिवर्सिटी में कोई बॉम्ब नहीं करेगा. हाँ. आपस में ना जर्मनी की ना ब्रिटेन. कोई किसी के नहीं. वो उनको पता था वो क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं. जंग लड़ना दिमाग से लड़ो. ओपेनहाइमर देखी ना, वो रिसर्च की जंग थी. वो जंग सिर्फ वहाँ नहीं लड़ रहे थे कि एक दूसरे पे गोली चलाना, वो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर भी था वहाँ पे, डिप्लोमेसी भी थी. अरे देयर वाज वन, एक और मूवी है यार वर्ल्ड वॉर 2 पे. अरे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ब्रिटिश मैथमेटिशियन, वो जिसने डिकोड किया था? वो नाम मैं भी भूल गया. दैट मशीन ही डिकोडेड दैट वो दिमाग में अटका रहे. खैर, अरे यार, जर्मन मशीन डिकोड हुई थी. No, the machine was the Enigma machine. Alan Turing. Read about Alan Turing. We'll find मतलब Germans ने जो Germans actually made a highly encrypted Enigma machine at that point of time. और Enigma machine क्या होता था? उसमें डेली वो चेंज होता था कोड. मतलब आप उसको डिकोड नहीं कर सकते थे क्योंकि मैसेज रोज कोडेड मैसेज ही जाएगा, लेकिन जो डिकोडिंग का सीक्वेंस है वो रोज बदला जाता था. अगर आज आपने इंटरसेप्ट भी कर लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इंटरसेप्ट किया पुराने उस पर देखोगे तो कुछ भी पैटर्न वो रोज चेंज होता था. एंड दिस पर्सन एलन ट्यूरिंग, ही क्रैक द एनिग्मा कोड कि ये चेंज होने का पैटर्न क्या है. सी, दिस वाज इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर. इट वाज नॉट जस्ट दैट वाज वॉर व्हिच वाज ऑन